لکی مسعودی صاحب، خوش آمدید آپ کا تانویر نشان ملٹی میڈیا میں. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو اسپائر جو ہے ایک نعرہ ہے آپ کا، چینج وی نیڈ، تو اس کے بارے سے ہمیں تھوڑا سا مختصر ہمیں اپنا بریف انٹروڈکشن دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقتاً فوقتاً آپ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم تعلیم کو فروغ دیں. تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ اسپائر جو نام ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے. ہم نے اسکولوں میں دیکھا کہ اسکول میں جو ہمارا کام کاج وہ بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے، لیکن کوچنگ سسٹم میں ایک جو خلا تھا وہ ہمارے وقت کی ضرورت، اور اسی کو پچھلے 4-5 سالوں میں جو میرا ایک کام رہا، ریسرچ بیسڈ ورک رہا، ایک ٹیم کے ساتھ ان کولیبریشن ود نرچر کیریئرز ورک ڈون اٹ، ہم نے اس پہ کام کیا. ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہے اکثر بیشتر جو پہلے سال کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں یا دوسرے سال بھی کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ کہ بچے کو کیسے ہم کوالیفائی کر پائیں گے پہلے ہی یا دوسرے ہی سال میں. تو اس پہ سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایشو رہا ہمارے پاس، جس پہ ہم نے کافی سوچ وچار کے بعد جو دیکھا، وہ یہ کہ اگر بچہ ہمارا 90%، 95% 10th میں لاتا ہے، یا وہ ایک ہنر جو ہے ایک ذہین بچہ اپنے اسکول کے اندر ہوتا ہے، ایک اس کا ایک پوزیشن ہوتا ہے اسکول کے اندر، تو یہاں سری نگر آ کے یا بعد میں کلاس 11th میں جا کے اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں لگا، دیٹ از دا مینجمنٹ فیکٹر آف دا انسٹیٹیوٹ. مینجمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے، میں آپ کو تھوڑا آپ کی وساطت سے جو ہے آڈینس کو یا پیرنٹس کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جو وقت کی اہم ضرورت ہے. وہ یہ کہ اسکول از بیسڈ آن مینجمنٹ، پیرنٹ اٹ سیلف از اے مینجمنٹ. اینڈ جب وہ بچے کو خیال رکھتے ہیں کہ 4 بجے کے بعد یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور چائلڈ، آپ کا اسکول جو ہے 1 دن 2 دن ایبسینٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک دم آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہے، آپ کا بچہ نہیں آتا ہے، شارٹیج دیتا ہے، وہ ایک فالو اپ ہوتا ہے. تو 11th میں آتے ہی اس کا جو ہے ہاتھ چھوڑ جاتا ہے اپنے پیرنٹس کا بھی. وہ جب سری نگر آتا ہے تو یہاں پہ ہاسٹل میں بیٹھتا ہے تو اپنے پیرنٹس سے دور رہتا ہے. تو انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی ہم نے ایک یہ چیز پائی کہ کوئی بھی جو انسٹیٹیوٹ ہے آپ کو اس کے آنے نہ آنے کے جو متعلق ہے کوئی خبر نہیں رکھتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جو فالو اپ کرنا تھا، کیونکہ عمر دیکھیں گے تو 16، 17 سال، 18 سال کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، دے آر اٹریکٹڈ ٹورڈز دی تھنگس وچ جو اس وقت ان کا کیریئر جو ہے تباہ کر سکتے ہیں. تو اس کو لے کے جو ہے ہم نے ایک اسکواڈ رکھا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر جو بچوں کو کمپلیٹلی ٹریک کریں گے. ہم نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے، ایک ہائی ٹیک سسٹم جس کو آپ بولیں گے، ٹیکنالوجی ایسے ڈیولپ کر دی ہے جس کے طریقے سے کہ آپ کا بچہ جو ہے جس دن نہیں آتا ہے آن اسپاٹ یو گیٹ این اٹینڈنس کی آپ کا بچہ جو ہے پریزنٹ نہیں ہے یا آیا نہیں. رہا سوال دوسرا جو ہے امپورٹنٹ، جو میں نے فیکلٹی کے اندر ایک چینج دے دی ہے. تو یہ چینج وی نیڈ جو ایک نعرہ آپ نے جو استعمال کیا لفظ، یہ نعرہ یہ ہے کہ بہرحال جو مجھے لگا کہ چینج وقت کی ضرورت ہے کوچنگ سسٹم میں. فیکلٹی کے بارے میں جو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اٹ از ایکچولی آئی ہیو ٹیکن دا فیکلٹی، آئی آئی ٹی این فیکلٹی، این آئی ٹی این موسٹ میکسیمم آف دیم آر آئی آئی ٹی این. اینڈ آئی آئی ٹی این جو کشمیر سے جنہوں نے کشمیری مطلب کشمیر کے لڑکے جو ہے جنہوں نے آئی آئی ٹی کیا ہے، آئی آئی ٹی مدراس ہے، آئی آئی ٹی ممبئی ہے، وہاں سے جو ہم نے لڑکے جو باہر پڑھاتے تھے ہم نے ان کو چوز کر کے وہاں سے یہاں لایا ہے. So they have an exposure of it, that how to crack first thing, how to make it possible to make it happen in the very first year. پہلے سال یا دوسرے سال یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. دوسرا ٹو تھنک ایٹ اے نیشنل لیول، بچے کو نیشنل لیول کے بارے میں کیسے سوچنے پر مجبور کریں کہ وہ اپنے آپ کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. ہمارا جو اس وقت ہر انسٹیٹیوٹ کا جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ کوالیفائی کیسے کرے گا. ہمارا نعرہ یہ نہیں ہے، ہمارا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ پہلے 3 پوزیشن میں ایٹ آل انڈیا لیول ان جے ای ان نیٹ کیسے آئے. یہ ہمارا دوسرا چینج ہے. تیسرا جو ہے امپورٹنٹ جو ہم نے اس کے ساتھ جو لگایا ہے بایولوجی کے لیے جو ڈاکٹرز کا انتخاب کیا ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ جو میں نے اس میں دیکھا، وائی آئی آئی ٹی میکسیمم آئی آئی ٹی دین این آئی ٹی دین ڈاکٹر. ایکچولی دیٹ اٹ سیلف این انسپائریشن when he is in front of you. آئی آئی ٹی آپ کے سامنے آپ کو پڑھا رہا ہے. he has an experience of it کہ how to crack it during his studies, during his class 12. He knows that I have worked this way, my teachers have taught me this way. What are the lacunas that I did, I couldn't make it, and what are the things I did, I made it.
تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ایک چینج میں نے لائی ہے، جو میں نے ایک چینج تبدیلی لائی ہے، وہ اس کو لے کے لطیف صاحب، میں آپ سے ایک توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو کوچنگ سینٹرز کا جو سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ وہ نا ایک انڈسٹری کی شکل وہ لے رہا ہے. تو آپ کے جو اسپائر ہے، آپ نے ایک نعرہ دیا اور آپ نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ IITians آپ کو لیے ہے، ڈاکٹرز کو لیا ہے اس میں ایز فیکلٹی. پہلے سے ہم نے ایسے نہیں دیکھا ہے. تو اور آپ کا جو ہے کہ آپ کا جو پروفیٹیبل ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہیں گے. انڈاؤٹلی میں تو اس کو آپ کو خدمت کے طور پہ ہی لینا ہوگا. بیسیکلی آئی وانٹ ٹو چینج دس تھنگ دیٹ مائی اسٹوڈنٹ تھنک ایٹ اے نیشنل لیول. That's itself a contribution. When students will come back from top level institutions of India, they will be back to serve in our valley. The valley will change. This actually I have made. It is not like it just एक institute आपको IITians देगा, institute आपको AIMS में selection देगा, अलीगढ़ में selection देगा, या बड़े institutes में या बच्चा जो है हमारा national TV पे कश्मीर का बच्चा आएगा कि you are in our top 3 ranks, इसको हम NDTV या इस पे जो हमारी नजर. मैं कहता हूँ, अगर आपको याद होगा कि जब हमारे जो क्या नाम इसका जो IAS टॉपर रहे हमारे शाह फैसल साहब, जो हमारे IAS 2010 के टॉपर रहे, अगर तब से आज तक का एक चेंज देखोगे IAS में इट्स अ नॉर्मल टर्न. आपको 10, 20, 25 बच्चे जो है JK में क्वालिफाई कर देते हैं. तब तक तो ये नहीं था, तब तक बच्चे ऐसा नहीं करते. ऐसे में आप चाहते हैं कि नीट और JEE में ऐसे एक तब्दीली आए. पहले साल माइंड बनाए. हमने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए. पहले ही साल होता है कि हम इस साल देखेंगे, इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो अगले साल करेंगे. नो, देयर शुड बी अ माइंड दिस वे ओनली. व्हाई टू वेस्ट अ ईयर? और वी कैन मेक इट एट अ नेशनल लेवल, लाइक यू शुड बी इन 1, 2, 3 पोजीशन. पहले 3 पोजीशन में बच्चों को कैसे लाए, तो इसके लिए हमने एक करिकुलम खड़ा कर दिया है. पहले साल जो हम उतना ज्यादा कामयाब तो इस तरह मतलब जो है इस साल के नीट के बच्चे हमारे पास आएंगे, उनका जो होता है सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं, उन्होंने पढ़ा ठीक से नहीं होता है कि जो उनको 11, 12 में जिस तरह का काम करना होता है, जो हमने करिकुलम बनाया कि वो कैसे काम करेंगे हम उन पे. तो 2 साल के बाद हम आपको उसका रिजल्ट दिखाएंगे जो हम इस साल का 11th बैच ले रहे हैं. एंड इट इज अनडाउटली इट विल बी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ टीचिंग देयर फॉर क्लास 11th एंड 12th. जो हमारा एंट्रेंस का उनके लिए भी हमने ये बना दिया है. उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चा जो है कितना खुद पिछले 2 साल में है. उसमें तो पैंडेमिक भी एक रिस्पॉन्सिबल है कि पैंडेमिक की वजह से कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जा नहीं पाए. तो इट विल नॉट बी विल कम अप विद द फेक रिजल्ट्स लाइक जो हमारा रिजल्ट आता है ऐसे कि मतलब बच्चा BVSC कॉलेज में 3 साल पढ़ा है. अगर आप आज की लिस्ट भी देखोगे अखबारों में तो इसमें से आपको यू विल फाइंड 95% स्टूडेंट्स और 2 जिन्होंने 4 साल 5 साल के बाद क्वालिफाई किया. मेरे पास कल एक बच्चा आया था, उसने 5 साल के बाद वो हद कर दिया मुझे. तो आई फेल्ट अशेम्ड कि 5 साल के बाद ये MBBS करने के लिए जा रहा है, तो इसकी लाइफ अब कहाँ जाएगी. तो ऐसा भी लग रहा है कि चेंज जो है वो ये है कि पहले ही साल, दूसरे ही साल मैक्सिमम कैसा बच्चा क्वालिफाई करे, और जो दूसरा रोड मैप हमने उसके बाद का बना दिया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग बट आई वांट टू शेयर विद यू. वी हैव कोलैबोरेटेड विद द नर्चर करियर्स. हमारा एक प्रोफाइल बिल्डिंग साथ साथ चलेगा 11th, 12th में, 9th, 10th में, जिसके लिए बच्चों को हम एक वर्क उन पे करेंगे. इन एडिशन टू द स्टडी, ये बच्चा कल को स्कॉलरशिप बेसिस पे टॉप कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कैसे अपनी सिलेक्शन अपनी कंफर्टेबल कॉलेज में जा सकता है, टॉप पढ़ेगा. लतीफ साहब, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा एक सवाल, क्योंकि आपने एक एस्पायर में एक है कि नर्चर किया इनको. आप बच्चे को ना वो जो उसको पता नहीं होता है कि क्या करें वो 8th के बाद, आपने एक जो कैरियर काउंसलिंग ये पहली दफा हमने देखा है. और हमने देखा है कि यहाँ पर जो है नीट और JEE, आप चाहेंगे कि IAS भी हो आपके इसमें एस्पायर में, वो भी आए, क्योंकि IAS में यहाँ पर बहुत से लोगों की ख्वाहिश है IAS के इसमें जाना. तो आप चाहेंगे कि ऐसे भी आप रखें इसमें, ताकि वो जो IAS है या उनको बाहर जाने की जरूरत है या बाहर से जो इंस्टीट्यूशन है उनको आने की जरूरत है. तो इस हवाले से बताइए. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मतलब जो है अभी शायद हम एस्पायर को उतना परफेक्ट नहीं समझते हैं कि हम IAS बच्चों के साथ जस्टिस कर पाएंगे. जितना हमारा 4 साल के इब्तिदा जो हमारी होगी वो इंशाल्लाह नीट, JEE और अदर जो है आफ्टर 12th एग्जामिनेशन के लिए, इमीडिएटली आफ्टर 12th जो भी आपके बड़े एग्जाम के हैं उनके लिए कोशिश रहेगी. अभी जो है आज के डेट में मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं कि आई एम अ पर्सन हु कैन हेल्प स्टूडेंट, जो बच्चों को हेल्प कर सकता है IAS क्लियर्स जाने में. हाँ, नर्चर करियर्स इन द वैल विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट कि IAS कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. बट वी आर नॉट अ कोचिंग सेंटर फॉर IAS और KAS. एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल में हमें खुद उसके लिए पहले एक रिसर्च टीम को बिठाना होगा. मे बी इट विल टेक अनदर 4-5 years
to establish our institute of that kind. Because we want results. We don't want it a coaching industry. We want a coaching center जो आपको results provide करे, और जो बच्चा यहाँ से बाहर जाता था वो वहां ना जाए, वो वहां का लेवल का टीचिंग यहाँ पे ले ले. वो हमारा मिशन है, वही हमारी तब्दीली है. और जो दूसरा है नर्चर कैरियर्स के साथ का कोलैबोरेशन, आपने जो बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमने इसके साथ एक एसोसिएट किया है. हमने देखा है कि मतलब बच्चा जो है जो शायद परस्यू करना चाहता है, अपने अंदर की आवाज जो उसकी है वो ये है कि मैं परस्यू करना चाहता हूँ आर्ट्स में. आपको देखना होगा कि आपके पास जो है नंबर लेस बर्ड्स है. There are thousands of kinds of birds in this flying in the sky, but you will find कि हर एक बर्ड की अपनी एक उड़ान. विंग्स तो हर एक के पास है, दिमाग हर बच्चे के पास है, लेकिन जो आपका जो विंग्स की स्ट्रेंथ है, फैल्कन फ्लाई हाई इन द स्काई, वो उसकी उस लेवल की स्ट्रेंथ है. यू कैन नॉट लेट, आप कौवे को उस लेवल की उड़ान नहीं दे सकते क्योंकि उसके विंग्स की स्ट्रेंथ उस लेवल की है. तो हमने देखना है कि बच्चे को कितनी स्ट्रेंथ है और उसके अपने की अंदर की आवाज जो है, उसके अंदर का पोटेंशियल जो है वो क्या है. वहां पे नर्चर कैरियर्स का रोल है. मैं इस वक्त आपकी वसादत से पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि कम and be a part of the nurture careers before taking a decision, especially for the class 10th students जो मूव कर रहे क्लास 11th में, वो नर्चर कैरियर्स के साथ एसोसिएट हो जाए. नर्चर कैरियर्स के नंबर हम शेयर करेंगे आपके साथ. डिसीजन लेने से पहले नर्चर कैरियर्स की टीम के साथ अपने आइडियाज को शेयर करें, अपने पोटेंशियल को शेयर करें. वहां पे कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट होते, साइंटिफिकली आपको डिस्कवर किया जाएगा. वो आपको डिस्कवर करेंगे कि आप किस चीज के लिए परफेक्ट हो. Either it is journalism, it is mathcom, it is your MBBS, it is your mathematics. सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेंथ दे सकते हैं और प्रोफेशन के हिसाब से भी आपकी स्ट्रेंथ दे सकते हैं. हमारे बच्चे जो एस्पायर ज्वाइन करेंगे उनको इस चैनल के दौर से जरूर गुजरना होगा कि वो जो है नर्चर कैरियर के ऑफिस से आके अपनी काउंसलिंग पार्ट को बना के उसके बाद उनका जो है एडमिशन दिया. लतीफ साहब, हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो गरीब तबके से जो वाबस्ता लोग हैं, EC है, SC है, ST है, या जो गरीब तबके से BPL से, उनके लिए क्या स्कॉलरशिप रखा है, उनके लिए क्या प्रोसीजर्स है, वो कैसे आपकी जो है एस्पायर में दाखिला ले सकते हैं. देखिए, मैं बार बार कहता आया हूं कि जो हमारा तालीम है, तालीम किसी की मीरास नहीं, ये किसी का जो है किसी की जागीर नहीं. तालीम हर एक शख्स का बुनियादी हक है. वो गरीब है, वो अमीर है, वो जो आपका अकल से मतलब आप मानेंगे कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, जिसको आप बोलते हो, लोग बोलते हैं कि शायद उतना ज़हीन नहीं है तो डिसीजन लेते हैं कि आज के बाद किसी काम में जुड़ जाए. मैं मान के चलता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है. ये हर एक इंसान का, हर एक शख्स का बुनियादी हक है. मेरा आपकी वसादत से तमाम कश्मीर के वालिदैन को ये एक मेरी तरफ से मेरे दिल की आवाज होगी कि कोई भी बच्चा जो है पैसे के लिहाज से परेपुरा या राजबाग सेंटर से वापस नहीं जाएगा अगर वो पढ़ना चाहता है. पैसा उसका ये रीजन नहीं बनेगा कि ये एफोर्ड नहीं कर पाया. I'll be taking care of the child as a parent. अब रहा सवाल एस्पायर का जनरल स्कॉलरशिप, वो ये कि पहले जो है हमने 30% scholarship to all those students. I think that has been covered so far because we have crossed more than 252 to 300 students. तो 30% स्कॉलरशिप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मिलेगी जो पहले 100 फॉर्म लेते हैं. उसके बाद आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ 8th, 9th, 10th जिसकी क्लास इंशाल्लाह 10th से लेके 12th तक हम शुरू कर रहे हैं, उनको ऑन स्पॉट जो है एडमिशन देके ऑन स्पॉट इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट लेके उसको ऑन स्पॉट स्कॉलरशिप इसलिए देते हैं क्योंकि हमने जो देखा ये बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं इस लिहाज से कि जब ये गांव से आते हैं, क्योंकि मैं खुद गांव से आके यहाँ एक बहुत बड़े झुंड में टेस्ट देते तो कंफ्यूज होते हैं, हम उनका अच्छा टैलेंट, एक्चुअल टैलेंट नहीं निकाल पाते. 8th, 9th के लिए हमने ऑन स्पॉट जो है स्कॉलरशिप रखी है. अलग से बच्चा एक एक करके हम एग्जाम दे रहे हैं, एक एक करके उसको क्लास में डालते हैं और एक एक करके एग्जाम देते वक्त उसको उसका पेरेंट सामने रख के उसको टेस्ट देते हैं, या एक वर्बल इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि ये बच्चा किस पोटेंशियल में ठीक है, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म. तो दूसरा जो स्कॉलरशिप होगा हमारा मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट इंशाल्लाह जो अनाउंसमेंट हम आपकी वसादत से भी करेंगे और तमाम न्यूज पेपर्स पे होगा. आपका 11th में जो बच्चे जा रहे हैं, 12th में बच्चे जा रहे हैं, जो एंट्रेंस में जा रहे हैं, उसमें एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होगा. तो उसमें उस बुनियाद पे आपका 2 तरह का स्कॉलरशिप होगा. 1, जो बच्चे हमारा क्वालिफाई करेंगे ऑन मेरिट बेसिस वेदर ही इज रिच और पुअर,
दूसरा वो जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उनका कोई इकोनॉमिक के साथ ताल्लुक। दूसरा जो लॉट मैंने रखा है वो हम सेपरेट करेंगे, जो बच्चे ज़हीर लेकिन इकोनॉमिकली जो है वीकर है तो वो एक अलग लॉट होगा। तो दो तरह की स्कॉलरशिप हमने रखी है। इसके लिए स्कॉलरशिप लजीफ साहब, आपके लिए चैलेंजिंग टाइम है, अभी टफ टाइम है, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से है आपकी जो है एजुकेशन जो सेक्टर है बैडली हिट हुआ है ड्यू टू द लॉकडाउन एंड पेंडेमिक। तो इस हवाले से हमें जानना चाहेंगे कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे जो है रिवाइवल, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो है हमारा, क्योंकि बच्चे तो ऑफलाइन में है, जो ऑफलाइन में मज़ा है वो ऑनलाइन में मज़ा नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि क्योंकि आप एक्सपर्टीज़ भी है, आपका एक नाम भी है, क्योंकि आप कोचिंग सेंटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी है। इस हवाले से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इकदाम लेने की ज़रूरत है जिससे जो हमारा कोचिंग सेंटर एजुकेशन सेंटर फिर से बहाल हो, जिससे हमारी क्लास रोने के बढ़े, आपस में इंटरेक्शन हो, तो उस हवाले से बताएं। अनडाउटली ये जो आप ऑनलाइन को मानेंगे ये एक कंपल्शन था, और मे बी नहीं जानते कि ये जो आसमानी आफत हम पे आई तो ये और आए ना आए, हम अल्लाह से दुआ करेंगे ऐसा कभी ना हो, फिर स्कूल बहाल हो जाए, कोचिंग सेंटर बहाल हो जाए, बच्चे जो है एक गहमा गहमी में, मैं चाहता हूँ कि रवा दवा तालीम की तरफ दौड़े, कोचिंग सेंटर्स की तरफ दौड़े। मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक जो है एक लाइव फिर से मैं देखना चाहता हूँ, जो मैंने 2019, 2018, 2017 में देखा रहा था, सुबह 8 बजे बच्चे दौड़ते रहते थे, तो मैं वो एक समा फिर से देखना चाहता हूँ। रहा सवाल ऑनलाइन का जो है, आपको मैं आपकी वसादत से ये भी कह रहा हूँ, मैंने एक ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा फरा कर दिया है कि वेदर इंटरनेट यू हैव अवेलेबल यू डोंट हैव अवेलेबल, दोनों स्कूलों में हमने एक फुल सिस्टम रखा है जो हम बच्चे को पहले दिन हैंड ओवर करेंगे। अगर आपका इंटरनेट चलता है तो हम एक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें पूरा एक सिस्टम हमने रखा है जिसमें आपको जो एग्जामिनेशन सिस्टम, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑल दैट विल बी इन दैट ऐप। हमारा आपके साथ जो है एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो उसको देखेंगी, रेस्ट आपको घर पर बैठ के करना हो। अगर इंटरनेट कोई ऐसा होगा, इंटरनेट ब्लॉकेड हो गया या इंटरनेट के इलाकों में कम चलता है, तो उनको हम चिप एक दे देंगे, वो अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के साथ जोड़ने के बाद वैसा ही सेशन ले सकते हैं जैसा ऑनलाइन ले सकते बच्चे ले लेंगे। पर ऑनलाइन जो है ये ऑलवेज इज अ कंपल्शन, it is never going to replace our classwork system. The classwork is an inspiration, जैसे मैंने पहले बोला कि IIT is teaching, IIT पढ़ाना जब ये टीचर सामने है तो it's an inspiration कि ये बंदा जो है, ये टीचर जो है जब ये कर पाया, वाई काट आए, वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता है। एक डॉक्टर है जो मैंने यहाँ पे डॉक्टर्स कुछ लगाए, BBSc डॉक्टर्स है, MBBS डॉक्टर्स है जो हमें यहाँ पढ़ाएंगे, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे मैंने लाए हैं ताकि ये बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन इसमें करें कि अपनी एक्सपीरियंस को बार बार शेयर करें कि जो है इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना, ये बच्चे के लिए एक आसानी नहीं। तो ये मैं चाहता हूँ। तो आपका सवाल जो है, ऑनलाइन कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ द क्लास वर्क। आखिर पे आपकी क्या मैसेज रहेगी पेरेंट्स और बच्चों के लिए और अपनी फैकल्टी के लिए, तो एज एस्पायर डायरेक्टर होने के नाते तो हमें बताएं। एस्पायर एक उम्मीद है, एस्पायर एक उम्मीद है। आई टॉक टू thousands of parents from north, south, east, west of the Kashmir, central Kashmir. I talked to thousands of people and they're very happy. I'm very much thankful to all those who have shared their experience with me. I've received calls from different teachers of local, from village schools, from village coaching centers, Sopor से पारमला, अनंतनाग, कोकरनाग, वहाँ के टीचर्स, आपका कुलगाम है, शुपियन है, इन इलाकों से जो टीचर्स ने मेरे साथ एक अपना जो है एक खैर मकदम किया इस स्टेप को कि the change we need is the slogan actually what we want. So this change will come inshallah with the help of those parents, with the help of those teachers, my team, all the team. I'm thankful to them for the support besides their busy schedule, besides their huge earnings outside. They have supported me. I'm so thankful to my team. I'm delighted they are with me. So I'm thankful to all of them. I'm thankful to the parents who have taken admission and who are going to think of Aspire, जो Aspire के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पूरे जो है आबादी के जितने भी आपके पेरेंट्स हैं उनको ये मैसेज दूंगा, खुसूसन स्टूडेंट्स को तो मैं खुद देख लूंगा यहाँ पे जो बच्चे मेरे पास ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी जो वालिदैन हैं कि सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, इतना ही काफी नहीं कि आपने नशूर को पैसे दे दिए और आपका खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। आपका काम शुरू होता है तब जब आप बच्चे का दाखिला किसी इंस्टीट्यूट में करते हो, तो उसका हाथ नहीं छोड़िए जब तक ना वो यहाँ से अपने मेडिकल कॉलेज या अपने किसी IIT कॉलेज में अपना रुख कर देता है, तब तक अपना हाथ जो है
اس کے ہاتھ میں ڈالتے رہیے. ہر دن مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ رہیے کہ یہ میرا بچہ کہاں پہنچا. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پیرنٹس مینجمنٹ کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ جڑے رہیں. میرا بچہ کہاں پہنچا, کیا کر رہا ہے, کتنا اس کو ضرورت ہے, اور اگر لگ رہا ہے کہ ہی از ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ گڈ تو بیٹر ہوگا کہ وہ الگ خود کو ایک ڈپریشن میں نہیں سنبھال سکتا ہے. بیٹر ہوگا کہ اگر ہم اس کا واپس شفٹ گاؤں کریں تاکہ وہ وہاں پہ خود آپ اپنی نگرانی میں اس کو بیٹر گائیڈ کر سکتے ہو. اگر وہ تھوڑا سا یہاں پر ایک پورا یا راج باغ یا کسی اور علاقے میں تھوڑا سا ڈیویشن دکھاتا ہے